Good morning, students. Let's come to the next one topic. Now, next we will discuss about the terms. The part of an algebraic expression connected by a plus or minus sign are called as terms of expression. Now, in algebraic expression, that all the things, that all number, variable, constant are connected by the plus or minus sign. That is called the algebraic expression. But in that they are connected by the plus or minus sign are called the terms. Suppose that this is an algebraic expression, these both are connected by plus. These, now how many terms are there in this expression? This one is a one term and this one is a second term. Did you understand? Now how many terms will, how will count the term? This is called the terms of expression. If a part has a minus sign before it, उन्होंने बोला है now in that if in expression minus sign before it, now in this expression, in this term minus sign is before it ना, then how we will count this expression as a two terms. एक कौन सी है 2x है, ठीक है, दूसरी कौन सी होएगी minus, we will also count in that term minus 4y. Did you understand? जो माइनस साइन है वो हम इंक्लूड करेंगे जब हम बताएंगे कि कितनी टर्म्स है. माइनस इज ऑल्सो इंक्लूड इन टर्म्स, ठीक है. नाउ द एक्सप्रेशन 2x, नाउ दिस वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ओनली वन टर्म्स, ठीक है. एंड टर्म्स कौन सी है? ओनली 2x. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन? x+2. दिस वन इज अ वन टर्म एंड दिस वन इज अ सेकेंड टर्म. दैट मीन्स द टू टर्म्स are given, two terms. Which one? One is a x and second one is a 6. Now in this one how many terms are given? 1 2 3, three terms are given. That ones are 2x. दूसरी कौन सी होगी? Now before this terms minus is also given, so second term is minus 6y and third term is 4z. Did you understand? माइनस हम लिखे ना लिखे इसका मतलब ही क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है. Now x plus z by 6 has how many terms? Two terms. One is this one and second is this one. That means x and z by 6. Now in which algebraic expression has a one term, that is called the monomial. We already done this one, is in the 6th class also. Which expression has a one term, that is called monomial. Two terms, which expression has a, that is called the binomial. And who have a three term, that is called the trinomial. Did you understand? Now in this example, first में कौन, how many terms? Only one terms. That means this one is a monomial. And in this there are how many terms? Two terms. That is called the binomial. In this one 3 terms. That is called the trinomial. And this one is also binomial. Two terms, na? Did you understand? Is a coefficient. A term may be either a literal or a constant or a product of literal and a constant. जो terms होती है वो उसमें literal और constant दोनों include होते हैं, product में भी होते हैं, division में भी होते हैं, मतलब ऐसे include होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? terms बोलते हैं उसको. और क्या बोल सकते हैं? factors of the terms. Now coefficient क्या होता है? कोई भी एक factor दिया है 2xy, ठीक है. Now in a question they can ask the coefficient of y. y का अगर coefficient निकालना है, y का कोफिशेंट क्या होगा? जो बच गए हैं दो नंबर वो हमारे क्या होंगे? y के कोफिशेंट होंगे. लाइक देखो, कोफिशेंट ऑफ y दैट इज इक्वल टू जो रह गया रेस्ट ऑफ द टर्म्स, दैट इज अ 2x. डिड यू अंडरस्टैंड? वही लिखा है, ईच फैक्टर ऑफ द टर्म इज अ कोफिशेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टर्म्स. वही सेम. The number or the constant which appear in the term is called the numerical coefficient of the term and the rest of the term is the literal coefficient of the term. Now अगर उन्होंने बोला है if a term has a no numerical coefficient, like देखो अगर कल literal दिए हों, ठीक है, मतलब अकेला literal कोई भी दिया हो, इसका कोई coefficient numerical में दिया नहीं दिया, that means उसका coefficient हमेशा क्या होएगा? 1 होएगा. Did you understand? Now let's see 5ab square. इन दिस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है? न्यूमेरिकल वाले कौन से होंगे? 1 2 3, दीज ऑल आर दी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें क्या है? 5. और लिटरल कौन से है? ये दोनों. जो लिटरल क्या होते हैं? वही वेरिएबल जो स्मॉल अल्फ़ाबेट में होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लिटरल. मतलब इसमें लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? ab स्क्वायर.
Now in a question they can ask, if they put that we will find in this term we will find the coefficient of 5a. अब देखो इसमें हमें 5a का कोफिशिएंट बताना है. 5a ये तो पूरा है, इसको छोड़ के जो बच गया वो हमारा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा. क्या बच गया, 20 क्या. सो कोफिशिएंट ऑफ द 5a क्या आ गया, 20 क्या. ठीक है. अगर इसी तरह उन्होंने बोला हो कि 5b का हमने कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ 5b. ठीक है. अब एक 5 तो है बट b 2 टाइम्स है ना, एक b तो बाहर आ गया, तो बच कौन कौन सा गया, a और b दोनों बच गए ना. एक b तो क्या, एक भी बच गया ना. सो 5a का कोफिशिएंट क्या होगा, a b होगा. अगर सिमिलरली इसी टर्म में वही टर्म लिख रही हूँ मैं. ठीक है. अब नाउ वी विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए बी. अब इसमें a और b भी एक बार ही लिया है बट इसमें b कितनी बार दिया है, 2 टाइम दिया है. a और b को छोड़ के बाकी कौन सी टर्म रहेगी, एक 5 रह गया और एक और b रहेगी, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 5b. सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी टर्म रहेगी वो क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 5. डिड यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स, that terms who have a same literal factors. Now if we have to given 2 terms, 3 terms, 4 term, any type of term, number of term is given, in that if the literal coefficient is the same, literal factor, that means that terms are like term. If the literal are not same, that means that are called the unlike term. For example 5a and minus 4a, in that literal is a, in this also literal is a, that means they both terms are like terms. In next example literal is xy, in this also xy, in this also yx, मतलब उल्टा कर दिया बट है तो सेम, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो लाइक टर्म. ठीक है. नेक्स्ट है 4x एंड 4x स्क्वायर. इसमें लिटरल क्या है, x है अकेला, इसमें क्या है, x स्क्वायर है. दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स नहीं है. इसमें 2 बार दिया है और इसमें एक ही बार दिया है. दैट मीन्स दिस वन इज अ अनलाइक टर्म बिकॉज द लिटरल फैक्टर्स आर x एंड x स्क्वायर. सो दीज बोथ टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स. डिड यू अंडरस्टैंड. Is polynomial in one variable. An algebraic expression is called a polynomial in a one variable if the literal factor of each of its term is a positive power of the variable. Now if in expression which are given in the literal coefficient like x, अगर उसकी पावर क्या है, सारों की पॉजिटिव होगी, that is called the positive power of, that is called the polynomial. अगर साथ में अगर algebraic expression में कोई भी like ऐसे दिया है, अब इसमें इसके कांस्टेंट के साथ कोई भी लिटरल नहीं है, दैट मीन्स इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, वो भी क्या होगी, 1 नहीं होगी. सो दैट मीन्स दिस इज अ एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है. बिकॉज द फैक्टर लिटरल हैज़ अ पॉजिटिव पावर. अब देखो जिसके ये जो टर्म्स इस टाइप की आती है जहाँ पर लिटरल डिवीजन में होता है, अकेला डिवीजन में दिया हो, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है 2x प्लस 1/x स्क्वायर. दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज अगर इसको x वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो वो x की बार क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी. ठीक है. ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी. दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन अ पॉजिटिव पावर. सो दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर नॉट इन अ polynomial, include not in a polynomial. The highest power of the variable appearing in any of the terms polynomial is called the degree of the term. जबकि देखो from example it will be clear. डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे लिटरल दिया हो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो दी होती है वो हमारा होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल ऑल द टॉपिक्स विल बी क्लियर. दिस टॉपिक 3x प्लस 2, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल. इसमें अब कौन सा वेरिएबल लिटरल यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 0 होगा. कौन सा लिटरल है, ये पॉलिनोमियल किस में है, वेरिएबल x में है. ठीक है. वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x में. अगर यहाँ पर y होता तो हम लिखते हैं y में. ठीक है. डिग्री अब इसकी क्या होगी, अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की. यहाँ पर कोई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर पावर 1 है. सो हाईएस्ट पावर कितनी है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, 1. ठीक है. And how many terms in this polynomial, this one is a 1 term and this one is a second term. 2 terms are in this polynomial. Next example
5x square minus 7x plus 3/2 is the polynomial. Now this polynomial is again in x variable, x ही दिया हुआ है इसमें literal, so this polynomial is in a x polynomial in a x. अब इसमें x की पावर सबसे हाईएस्ट किस में है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें 0 है, ठीक है. दैट मीन्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2 है, ठीक है. वही अब इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 और 3 टर्म्स है. डिड यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो नाउ दिस पॉलिनोमियल इज इन अ कौन सा वेरिएबल है इसमें, लिटरल कौन सा है y वाला. दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज इन अ y. हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी क्या है 3 है, इसकी 1 है, यहाँ पर नहीं है. दैट मीन्स y दी पावर 0 होगा. ये हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 3 है. हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल 1 2 एंड 3. डिड यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन है 4a स्क्वायर प्लस 7/a प्लस 5a. अब देखो इसमें जो लिटरल है यहाँ पर तो ऊपर दिया है, बट यहाँ पर किस में है डिवीजन में है. दिस टाइप ऑफ टर्म इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिसमें लिटरल जो हो वो नीचे दिया हो, डिनोमिनेटर में दिया हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होती है. बिकॉज इसकी पावर जब ऊपर लेके जाओगे वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ दिस वन इज अ पॉलिनोमियल. अब इसमें देखो लिटरल कौन कौन सा है, एक u है, एक uv है, एक v है. मतलब कितने लिटरल है 2 लिटरल है. दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज इन अ uv वेरिएबल्स. 2 वेरिएबल्स कौन कौन से है u एंड v, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, algebraic expression. How to find the value of the algebraic expression. Now the algebraic expression is given. साथ ही साथ उन्होंने बोला है how we will find the value of this expression. On corresponding we have to given like x is equal to if x is equal to 5. अब एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग होगी अगर x की वैल्यू भी अलग अलग होगी, बट इसमें x क्या है उन्होंने बोला है 5. हम x की यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी. हाउ वी विल सॉल्व 3x की पावर 5 दैट मीन्स ये 2 है, सॉरी 5 की पावर 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू एक्स क्या है 5 पुट कर देंगे प्लस 1. अब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5 की पावर 2 है दैट मीन्स ये 5 विल कम 2 टाइम्स 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5 20 प्लस 1. नाउ सॉल्व दिस वन. मल्टीप्लाई करोगे 5 15 इंटू 3 75 माइनस 20 प्लस 1 56. दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 56 आ गई जब हमने एक्स को क्या पुट किया 5 पुट किया. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन. अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल किस किस में है, यहाँ पर एक्स भी वेरिएबल और वाई भी है. दैट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, ठीक है. नाउ इन दैट दे कैन आस्क इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स 3 एंड वाई की -2. अब एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है और वाई की -2 पुट करनी है. हाउ विल सॉल्व एक्स की वैल्यू 3 स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे -5 इंटू एक्स की 3 और वाई की -2 -2 का स्क्वायर. नाउ सॉल्व दिस 3 इंटू 3 9 3 विल कम 2 टाइम ना 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36. नाउ इन दिस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30. नाउ दिस विल ऑल्सो -2 द स्क्वायर दैट मीन्स इट विल कम इन अ पॉजिटिव बाहर बट माइनस वैसे ही लगेगा 2 इंटू 2 4. अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 66 minus 4 that is equal to 62. That means the value of the algebraic expression is this one. Now you have to solve full exercise on your fair copy. If you have any kind of problem in this exercise then you please ask me. I'll solve that problem.